Hi, welcome back to the channel. So today in this video, I will be sharing my CAP IM interview experience. I had the interview on 26th of March at Mumbai at Hotel Clifton. So I had to reach the venue at around like 12:30 to 1 p.m. So I reached there on time, like मैं 1 बजे almost पहुंच गई थी. So I got to know that our interview, like registration process, is going on in the basement of that hotel. सो आई वेंट देयर एंड वहाँ एक जगह था जहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे थे एंड देन वी हैव टू साइन अ शीट एंड वो शीट साइन करके फिर एक और रूम था वहां शिफ्ट होना था एंड वहां एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा था. सो आई रीच्ड देयर एट 1 PM एंड मेरा रजिस्ट्रेशन टाइम होते होते तक ऑलमोस्ट 3 बज गया था. लाइक इट वॉज 3 o'clock एंड बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा था एंड बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था विच वॉज ऑल्सो रियली एग्जॉस्टिंग. But I got done with my registration process and I got to know that my panel number is 1. But at that time I didn't know about my sequence number. ऐसा था कि एक एक पैनल से एक एक स्टूडेंट को बुला रहे थे and then we just had to go there. So eventually my sequence number became 4 and I was the 4th one in my panel. So I asked the first 3, like मैंने पहले 2 को तो पूछा ही कि how was the interview and all, and they both said कि the panels are very chill and they are quite good. And then my turn came. So there were 2 panelists and both were male. One was one was very chill and friendly. Like whenever I was answering a question, he was smiling and like listening my answers and all. And the second one, he was kind of strict and मैं जब answer दे रही थी, he was not also looking at me. So I was kind of feeling कि थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं आंसर एंड ऑल, बट आई थिंक ही वॉज जस्ट प्लेइंग अ रोल एंड ऑल. सो ओवरऑल बोथ पैनलिस्ट वेर गुड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट आस्क वॉज ऑब्वियसली टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि ओके ये पूछे, क्योंकि मेरे से पहले वाले को दे डिडंट आस्क टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड डायरेक्टली अकेड्स के क्वेश्चन शूट करने स्टार्ट कर दिए थे. सो आई वॉज वरीड अबाउट दैट, बट दे डिड आस्क मी टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो आई आंसर्ड देम एंड गेव द like prepared answer. So the panelist one, the sweet one, he asked me, so you have done digital marketing. What exactly is digital marketing? So I answered them. Then he asked me what drives growth and all in digital marketing. Then I said reach and conversion rate and all. मेरे को ही पता था, I studied about it, so I answered it. Then the panelist one only asked me what is your favorite subject. So I said economics. Then he asked me the difference between GDP and GNP. So I knew that and I answered it in a very good way and structured way, क्योंकि पढ़ा हुआ था economics, I know. Then he asked me, do you know statistics? And here comes the downfall. Like मेरे को statistics ही you all know कि नहीं आता, but IIT कानपुर से I learned कि थोड़ा बहुत basic statistics तो पढ़ के जाना चाहिए. So I studied about it. So to my luck, he asked me the question जो मैं पढ़ के ही गई थी. He asked me what is standard deviation, which was very basic, so I knew. Then he asked me what is weighted average, और ये तो अपन कैट में पढ़े थे, so I knew weighted average also. So I answered. Then he asked me what is correlation. So correlation मेरे को नहीं पता था, so I just said कि sir I don't know what is correlation. Then he asked me one more question. I'm not recalling the question right now, but it was related to statistics only. So I just said ki sir I'm not good at statistics. Then he told me ki you have done BCom, so you must have one subject as a statistics. So I said ki sir yes I had that subject, but that was in first year, so I have kind of lost the touch and all. So he said okay. And then the panelist to ask all of the while I was answering the question to panel 1, panelist 2 was drinking water and अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा रहे थे and all that. Then panelist to ask me what are the neighboring states of Chhattisgarh. So I knew कि उड़ीसा तो है ही, so I said उड़ीसा. Then I got confused between Maharashtra and Madhya Pradesh because the name of both of them starts with M. So मैं थोड़ा confused हो गई. I said sir महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ऐसे करके थोड़ा फंबल करने लग गई. Then he asked me तुम छत्तीसगढ़ से मुंबई आए हो, रास्ते में क्या क्या पढ़ा, like what are the cities that came in between. So I said Nagpur and something. So he said नागपुर है, so महाराष्ट्र तो है, ये मतलब बॉर्डर महाराष्ट्र का तो है, छत्तीसगढ़ का नेबरिंग बॉर्डर. व्हाट अबाउट मध्य प्रदेश? एंड जैसे वो ऐसे बोले ना कि व्हाट अबाउट मध्य प्रदेश, आई जस्ट मेरे को सडनली याद आया कि पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही स्टेट होते थे, देन इट गॉट सेपरेटेड. सो मैं बोली कि यस सर सॉरी आई फॉरगॉट, बट पहले ऐसा सीन था. सो देन पैनलिस्ट 1 आस्क मी कि व्हाट वाज द डेट फॉर द सेपरेशन.
सो आई न्यू कि नवंबर 2000 में सेपरेट हुए हैं, बस मैं भूल गई थी, मेरे को ये आता था. सो आई जस्ट सेड कि सर नवंबर 2000 एंड ही सेड ओके. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि पैनल 1 जब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे थे उस समय बजट के बारे में भी पूछे थे, द ओवरव्यू ऑफ बजट एंड ऑल, डिड यू फॉलो बजट एंड ओवरव्यू क्या था. सो आई आंसर्ड इट वेरी इन ए स्ट्रक्चर्ड वे बिकॉज आंसर मैं ये प्रिपेयर ही करी थी जब बजट अनाउंस हुआ था तभी से. देन ऑल्सो वन थिंग मोर कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ हमको तब बोले थे कि डोंट रिवील योर कैटेगरी एंड परसेंटाइल टू द लाइक पैनलिस्ट, एंड उनको नहीं बताना कि तुम्हारा परसेंटाइल कितना है. एंड आई थिंक दैट वाज रियली गुड थिंग बिकॉज अगर कोई पैनलिस्ट तुम्हारा परसेंटाइल पहले से जान जाता है तो एक प्री फॉर्म ओपिनियन बन जाता है कि ओके ये इतना केपेबल है स्टूडेंट, एंड वो नहीं बताना था. सो दैट वाज गुड थिंग. बट द पैनल डिड आस्क मी कि व्हाट अदर कॉल्स डू यू हैव, एंड मेरे से पहले वाले को भी पूछा था. सो आई थिंक पैनल वांटेड टू नो द रेंज ऑफ परसेंटाइल एंड ऑल, एंड आई सेड एमडीआई उदयपुर एंड ये सब, तो उनको लगा होगा कि मेरा 95 से ज्यादा ही है क्योंकि एमडीआई का कॉल है. देन द पैनल 1 अगेन आस्क मी कि व्हाट आर द 5 नेम द 5 वुमेन सीईओज. सो ये एक ट्रांसक्रिप्ट में था, सो मैंने ये पढ़ा था कि 5 वुमेन सीईओ कौन कौन है. सो आई जस्ट आंसर्ड, and one of the CEO which I mentioned was like the founder and all. So one of the founder I mentioned was पारुल गुलाटी, who is the founder of Niche Hair. So मैं पारुल गुलाटी को बहुत पहले से फॉलो करती हूँ because she was an influencer and then she became like actor and then she became entrepreneur and उसका भी BNB भी है. So I just mentioned all of it and then he like मैंने ये सब अभी mention नहीं करता, I just named her and then he asked whom do you like the most among them. So obviously I mentioned Parul Gulati and मैंने वो सब बताया and I just said कि the quality I like of her is she does not limit herself to one particular thing. Like वो एक्टर बन गई तो ऐसा नहीं था कि she was very satisfied and she was content with it. She just wanted to explore more of it and she just wanted to explore all of her opportunity and all. So मैंने ऐसे बोला and he was like okay. Then in cap form I just mentioned some of my extra curricular activity and मैंने बहुत कुछ करा था like dance and stand up comedy and then yoga, karate. So मैंने ऐसे बहुत सारे चीज, बास्केटबॉल, ये सब बहुत सारे चीज मेंशन करा था. बट मैंने ये सब चीज कॉलेज या स्कूल में ही करा था. सो द पैनल टू आस्क मी कि ही जस्ट नेम्ड ऑल ऑफ देम, डांस, स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसे करके सारा का नाम लिया. एंड देन ही टोल्ड मी कि ये सब कॉलेज में ही करा, यू डिडंट पार्टिसिपेटेड इन एनी नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन. So I said ki sir I am from a town and I didn't get that opportunity, but if I get that opportunity in the future I would very much leverage it. And then they both looked at each other and said that's it, and any question for us. So एक क्वेश्चन था जो मैं बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखी थी टू आस्क इन एनी ऑफ द इंटरव्यू, बट आई वाज नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई डिड गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन द इंटरव्यू ऑफ कैप. आई आस्क वन क्वेश्चन, आई प्रिपेयर्ड फॉर देम एंड दैट्स इट. And I said thank you. They told thank you and all the best. And yeah, that's it for the interview. Overall, I feel कि this was the interview where I feel कि interview was good, क्योंकि पहले का इंटरव्यू वॉज इधर एवरेज और कानपुर का तो बहुत ही बेकार गया था. इफ यू हैवंट सीन द वीडियो प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो. सो दिस इंटरव्यू आई फेल्ट गुड एंड मे बी कन्वर्जन का चांस है बिकॉज आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. बस एक दो थोड़ा बहुत फंबल हुआ एंड आई थिंक दैट्स ओके. एंड इन सबसे भी ज्यादा आई थिंक विच वॉज रियली गुड कि मैं ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि ऐसा था कि जम्मू का इंटरव्यू है, सो उतना ज्यादा मैं नर्वस नहीं थी. वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था जितना मेरे को उदयपुर के इंटरव्यू में था और कानपुर के इंटरव्यू में था. सो मैं बहुत ज्यादा चिल थी एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर करी विच वॉज रियली गुड. सो आई होप कि बस कन्वर्ट हो जाए. जस्ट वॉन्ट अ कन्वर्ट. एंड यू नेवर नो कि पैनलिस्ट क्या सोच रहे हैं. यू जस्ट इंटरप्रेट एंड अज्यूम्स, बट लेट्स सी. आई जस्ट हैव वन इंटरव्यू लेफ्ट राइट नाउ विच इज ऑफ MDI गुड़गांव एट 3rd of April. सो आई जस्ट होप कि वो मेरा बहुत अच्छा जाए. बट आई एम वेरी नर्वस फॉर GD राउंड बिकॉज अभी तक मेरा कोई भी इंटरव्यू में GD राउंड नहीं हुआ है. सो आई एम नर्वस अबाउट इट, बट लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड that's it for the video. Thank you so much for watching it. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it. Bye bye.